Talking about the class, it's already getting started. So hello everybody, here we are with another day 44 of 90 days challenge of Unstoppable Academy. Talking about the topics covered so far, so these are the topics which we have covered. Okay, so you don't really need to worry about anything. Mostly I'm gonna be speaking in English because right now I think if I speak in English, you guys can easily understand. Yes or no? Yes, sir. Do you understand when I speak in English, or you face difficulty in understanding? Tell me. Pushpanjali? No, sir. Okay, you can understand. What about Pushpanjali? Can you understand what I'm saying? By turning your mic on, you have to say it. You have to answer my question. Alright, yeah. Can you understand? Yes, sir. Okay, that's really awesome. By the way, these are the topics which have been mentioned over here. All these topics have already been covered by now. So just do one thing, whenever you get time, revise everything, practice as much as you can, and this is what will make you speak English. आगे बढ़ते हैं. Okay, why am I speaking in Hindi? These are the prepositions. Okay, just revise them time to time so that you don't forget anything. At the end, we learnt about questions, how to make questions and how to answer questions. You already know there are two types of questions. Firstly, which can be answered in yes or no. Second, which cannot be answered in yes or no. Those which can be answered in yes or no, mostly they start with kya in Hindi. Like क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं बुरा हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं आता हूँ, and whatever. And those questions which can't be answered in yes or no, they don't start with kya. They start with another WH words, and mainly kya you can find kya in the middle of the sentence, something like that. आगे बढ़ते हैं. Let's go ahead. So these are the topics, these are the WH words you have to learn, and you have already learned. And this is it. What I'm gonna do today. Right now I'm just simply gonna give you sentences and you have to answer them. Is that clear to you? The main focus Yes, is gone. sir. I just hope right now by this time if I give you any sentence, suppose these are the sentences, and if I give you any sentence, you should be able to translate. Like आप रोज कब तक काम करते हैं? जय, translate this sentence. आप रोज कब तक काम करते हैं? This is the sentence for you. Can you do that? Translate it. Yes, sir. Yeah, translate it. आप कब तक काम करते हैं? From when do you work? सर दैट्स एक्चुअली रॉन्ग. आपको प्रेपोजिशन के भी अच्छे से कमांड नहीं है, क्योंकि तक के लिए फ्रॉम के आप नहीं लगाते. अगर प्रेपोजिशन की कमांड होती तो. पुष्पांजलि, गो अहेड. Till when do you work? टिल व्हेन डू यू वर्क. सिंपल सी बात है. देखो जब तक आ जाए ना वहाँ पर फ्रॉम नहीं लगता. फ्रॉम का मतलब से होता है किसी समय से, किसी प्लेस से, किसी सोर्स से. तो से के लिए आप फ्रॉम का यूज करते हो. जब तक आ जाए वहाँ पर टिल, अंटिल इन सब का यूज करते हो. तो टिल व्हेन या तो अंटिल व्हेन डू यू प्ले एवरी डे, रोज को बोल दोगे. बाय द वे ट्रांसलेशन तो आपको बगल में मिल ही जाएगा. टिल व्हेन डू यू प्ले अच्छा वर्क था क्या? ओ सॉरी, काम करते हैं, सॉरी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, दैट्स गोना बी लाइक आप किस कार में बैठे हैं? जय, आपकी कार में in whose car are you sitting? हुज कार मतलब किसकी कार में. तो अगर मैं बोलूँ आप किसकी कार में बैठे, देन यू वुड से इन हुज कार. मैं बोल रहा हूँ किस कार में आप बैठे हो. In which car you sitting? एग्जैक्टली जब आप किस की बात करोगे वहां पर विच के यूज कर दोगे तो आप सिंपल बोल दोगे इन विच कार. अंतर क्या है? विच बताएगा कौन सी कार है भैया, वो बताएगा. सिंपल सी बात है. कौन सा लड़का तो आप बोलोगे विच बॉय. कौन सी कार? विच कार. कौन सी कार में या तो किस कार में? इन विच कार. हुज बताता है आपकी पोजीशन को, अधिकार को. जब आपको बोलना किसका, किसकी कार, तो हुज कार, किसी कार में, इन हुज कार. कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे. आई विल बी जस्ट आस्किंग मोर क्वेश्चंस राइट नाउ. किस बैग में 3 किताबें हैं? जय, यू स्टार्ट एंड देन पुष्पांजलि इज गोना आंसर. या Which bag? विच बैग? In which या 3 किताब में? In which bag 3 books? Okay, you have directly translated that without using any rule. In which bag 3 books. इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होता. पुष्पांजलि, try it once. Question? किस बैग में 3 किताबें हैं? या In which bag is there? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे वहां पर देयर का यूज करोगे. तो अगर मैं बोलूँ 3 किताबें तो आप बोलोगे देयर आर 3 बुक्स. देयर आर 3 बुक्स. 3 किताबें हैं. बाय द वे किस बैग में 3 किताबें हैं? तो इन विच बैग
आर देयर 3 बुक्स, इज दैट क्लियर? आर देयर 3 बुक्स। और अगर आप और ज्यादा इसको अच्छा बनाना चाहते हो, जो इन है उसको लास्ट में ले जा सकते हो, विच बुक आर देयर 3 बुक्स इन, इज दैट क्लियर? सॉरी, विच बैग आर देयर 3 बुक्स इन। तो अल्टीमेटली जो प्रेपोजिशन उसको आप लास्ट में भी लगा सकते हो, इज कंप्लीटली योर चॉइस, एंड इन दिस वे यू हैव टू जस्ट सिंपली गो अहेड। बाय द वे, लेट्स ट्रांसलेट सम मोर सेंटेंसेस एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग। आप किसको चाहते हो? आप किसको चाहते हो? सिंपल, whom do you want। अब देखो मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है, ग्रामेटिकली तो करेक्ट नहीं है, आई विल नॉट से दिस इज गोइंग टू बी ग्रामेटिकल, ये सेंटेंस पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट है, whom do you want। बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है कि whom की जगह who का भी यूज लोग कर देते हैं, who do you want भी वो बोल देते हैं। और कहीं ऐसा भी आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि whom को who कहीं कहीं रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। आप और कब फिल्म देखना चाहेंगे? आप और कब फिल्म देखना चाहेंगे? जय, गो अहेड। और कब? When else would you like to see picture? When else would you like to watch movie? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप कितनी बार क्रिकेट खेलते हो? पुष्पांजलि, कैन यू ट्रांसलेट इट? आप कितनी बार क्रिकेट खेलते हैं? How often are you playing? हाँ, how often do you play? Simple present. Is that clear? खेलते हैं। Okay, तब क्या हुआ? जय। तब मतलब क्या बोलोगे? देन मतलब होता है तब। तो मैं बोलूँ तब क्या हुआ? देन क्या हुआ? व्हाट हैपन, जो हुआ वही तो सब्जेक्ट है ना। सो व्हाट हैपन, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर देखना, जब मैं बोलता हूँ कि तब क्या हुआ, तो जो हुआ वही हुआ, वो हो गया सब्जेक्ट आपका, क्योंकि उसकी आप बात कर रहे हो, और क्योंकि वही हुआ, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया व्हाट, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और जब कोई भी WH वर्ड सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके बगल में डायरेक्टली वर्ब लगा देते हो, उसको ज्यादा हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं लाते, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। देयर आर गोना बी फ्यू मोर क्वेश्चंस राइट नाउ। आप और कब किससे मिलना आप कब और किससे मिलने जा रहे हैं? ओके, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। आप कब और किससे मिलने जा रहे हैं? आप कब और किससे को क्या बोलोगे आप? कब और किससे WH वर्ड कब और किससे? when and whom मतलब हो गया कब और किससे। आप कब और किससे मिलने जा रहे हैं? When are you meeting? When and whom are you going to meet? सिंपल। देखो WH वर्ड हो गया कब और किससे, तो कब और किससे के लिए when and whom लगा दिया, ये सारा का सारा WH वर्ड हो गया। तो when and whom are you going to meet, सारा का सारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Just Yes, the sir. thing you have to do, just there are so many sentences, practice them. Simple. Get a sentence, translate that, check the answers, and in this way keep doing that. If you can translate most of the sentences, that's really awesome. If you cannot translate them, which means you need to practice them over and over. Is that clear? Yes, sir. What we are gonna do right here, I'm just simply gonna give you questions. You have to tell me the Hindi meaning of that question, and after that you have to answer the question. So the very first question, that's gonna be for Jay, and that is, do you dare to fight with them? Do you dare to fight with them? क्या तुम्हें उनसे लड़ने की हिम्मत है? क्या तुम में उनसे लड़ने की हिम्मत है? Do you dare to fight with them? Answer this question. Yes, I dare to fight with them. या negative? No, I don't dare to fight with them. All right, पुष्पांजलि, should we meet after a while? After a while means होता है थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ पर इसको लिख लेना आप अच्छे से। After a while मतलब थोड़ी देर के बाद। ऐसे ही before a while थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो while मतलब यहाँ पर देर को बताता है, for a while थोड़ी देर के लिए। Is that clear? तो यहाँ पर ये देर को बताता है। कीप इन माइंड, अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो जल्दी इस कॉपी में, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। लेट मी डू वन थिंग, ये मैं लिख देता हूँ इधर, डोंट वरी, बेटर रहेगा। आफ्टर अ व्हाइल इट, प्लीज जस्ट टर्न द माइक ऑफ प्लीज। आफ्टर अ व्हाइल इसका मतलब हो गया थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर बाद। You are not gonna do that, right? Keep your mic unmuted for a while. Okay, after a while मतलब होगा थोड़ी देर के बाद, before a while
थोड़ी देर के पहले, थोड़ी देर पहले, सर फॉर है। सॉरी लास्ट है आपका फॉर अ व्हाइल। जस्ट अ मिनट जय, यू आर नॉट डूइंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, जस्ट कीप योर माइक टर्न ऑफ फॉर अ व्हाइल। ओके, तो आफ्टर अ व्हाइल मतलब हो गया थोड़ी देर के बाद, बिफोर अ व्हाइल थोड़ी देर के पहले, एंड फॉर अ व्हाइल लास्ट का आपका है थोड़ी देर के लिए। सर फॉर बिफोर यहाँ पर फॉर किस वाले में? टेंस या ऑफ कोर्स बिफोर ही तो मैंने लगाया ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम? फॉर दीदी अच्छा दिख नहीं रहा क्या? वो मैंने फोर नहीं लिखा, बिफोर, बिफोर BEFORE, ये सुनो। ओके दैट्स गुड, मैंने सोचा वो गड़बड़ हो गई क्या थोड़ी देर के लिए। ओके लेट मी, थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट, दीस आर द वर्ड्स बाय द वे। एग्जांपल मैं दे देता हूँ जल्दी से यहाँ पर ट्रांसलेट करके, इनकी प्रैक्टिस करें ना। जैसे मैंने बोला मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, ये तो मैं थोड़ी देर बाद आया। आई केम आफ्टर अ व्हाइल, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग बिफोर अ व्हाइल, बिफोर अ व्हाइल। मुझे तुम्हारी पेन थोड़ी देर के लिए चाहिए, आई नीड योर पेन फॉर अ व्हाइल। या टेल मी। ऐसे कई जगहों पर चाहिए की जगह नीड का प्रयोग होता है क्यों? देखो डिपेंड करता है, ज़्यादा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में मत जाना। जब मैं बोलता हूँ चाहिए, ठीक है ना, अब वहाँ पर चाहे आप वांट के यूज कर दो, चाहे वहाँ पर आप नीड के यूज कर दो। नीड मतलब ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत में भी आपको चाहिए। आप कहते हो मुझे चाहिए मतलब आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। और दूसरा आप कहते हो मुझे वो चाहिए मतलब आप वो चाहते हो। तो डिपेंड करता है कि वो चाहिए के पीछे की मीनिंग क्या है, ठीक है ना। जैसे आपने चाहिए बोल दिया, वहाँ पर नीड का भी यूज हो सकता है, वांट का भी यूज हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसे चाहते हो कि आपको उसकी ज़रूरत है। लेकिन चाहे चाहते हो चाहे ज़रूरत है, लेकिन आपको तो चाहिए ही, ये सुनो। तो हिंदी मीनिंग पे ज़्यादा मत जाना, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग कि जब भी आप नीड के यूज करोगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मुझे तुम्हारी पेन चाहिए, तो आई वॉन्ट योर पेन भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट योर पेन फॉर अ व्हाइल। सो बोथ ऑफ देम आर राइट, डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है जी। ऐसे आपको मेन बुक्स में भी मिल जाएंगे कई जगह, तो जब कोई नई बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ऐसे मिल जाएंगे। तो जस्ट फोकस ऑन द मेन मीनिंग, दैट इज नीड एंड वांट, इसका मतलब क्या होता है, एंड दैट इज द सिंपल थिंग। आगे बढ़ते हैं, सारे थिंग्स हो गए सर जी, इस तरीके से आपको आंसर देना है। एंड questions are gonna keep coming. By the way, next question for you, that's gonna be like, who punishes the boys? Come on, Jay, who punishes the boy? कौन लड़कों को डांटता है? Yeah, answer this question. I need you to answer it. अरे I punish the boy, teacher punishes the boy, mother punishes the boys, father punishes the boys, a person punishes the boys, anybody. Is that clear? Yes. Alright, by the way, next question for you. Which movie did you watch yesterday? Pushpanjali, which movie did you watch yesterday? Yeah. कौन सी मूवी तुमने देखी थी कल? हाँ, translate this sentence. Sorry, answer it. Which movie did you watch yesterday? Can you answer this question? You can take any movie's name. I. Whenever you answer in yes, I watched वहाँ पर होगा, या I watched, और यहाँ पर किसी मूवी का नाम लगा देना yesterday. Is that clear? Okay, तो I watched Milkha Singh movie yesterday. I watched sorry, unmute yourself. I was about to mute Jay over here. Okay, so you can just put any names movie over here, like I watched this movie yesterday, I watched that movie yesterday, I watched the 3 Idiots movie yesterday. कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। जब whenever there's a background noise in your side, at that time you have to turn your mic off and after that you can turn it on. In this way we are gonna be going है। तो भैया जब भी आंसर्स का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो ध्यान देना, अगर डिड आ गया तो हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर आंसर दोगे, क्योंकि सिंपल पास की बात हो रही है। वेयर इज विपेंद्र सर? जय, आंसर इट। सर कहाँ है? हाँ, विपेंद्र सर कब है? आंसर इट। विपेंद्र सर इज एट हिज होम। या चलेगा, विपेंद्र सर इज एट हिज होम। आगे बढ़ते हैं पुष्पांजलि, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग?
कहाँ से तुम आ रहे हो? तो सॉरी, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? कहाँ से आ रहे हो हाँ, तुम? कहाँ से तुम आ रहे हो? आंसर दिस क्वेश्चन। I am from I am from आई एम कमिंग फ्रॉम, नहीं, आई एम कमिंग yeah, फ्रॉम, I am coming from Ramnagar. आई एम कमिंग फ्रॉम रामनगर, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। इस तरीके से भी किसी भी क्वेश्चन को ले लोगे। चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेना हो मैंने पहले ही बता दिया। इज दैट क्लियर? तो इंसान में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Yes. सिंपल जाकर उस पर्टिकुलर चैट जीपीटी की हेल्प से लो। बाय द वे उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल पे। अगर नाम की बात करूँ, चैट जीपीटी ऐप, तो ये है ऐप आपका। सिंपल आप इसको इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे जाकर। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको वहाँ पर चैटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से आप चैट कर सकते हो डायरेक्टली उससे, ठीक है ना। बोल तो टाइप तो कर ही सकते हो, टाइप करने के साथ चैटिंग का भी वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। समथिंग लाइक इन दिस वे दैट चैट जीपीटी इज गोना बी टॉकिंग टू यू गाइज। तो या बोल कर क्वेश्चन दे सकते हो, आप दे सकते हो कि दिस इज माई क्वेश्चन, आंसर इट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन का ट्राई करो। सेकंड, चैट जीपीटी की हेल्प से अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको बोलना तो लोगों से जाकर बोलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। ये मत सोचना कि ऐसे ही आ जाएगा बोलना, उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ऑलराइट, सो दिस वाज इट। इन दिस वे यू गाइस हैव टू जस्ट कीप गोइंग अहेड। एंड अब बारी आती है आपके डेली रूटीन की। तो पुष्पांजलि, टेल मी योर डेली रूटीन इन प्रेजेंट टेंस। Okay, sir. या Present, sir. Present. Make it quick, we don't have a lot of time. I wake up in the morning at 5 o'clock. ऑलराइट। Then I go to washroom. Then I freshen up. Then I go to then I go for work. Okay. Then after that I come back my home. Then I go to washroom. Then I get ready for dinner. ऑलराइट। Then after that I coming. I come in downstairs. Then I have a dinner. ऑलराइट। Then I get ready for school. यू टेक ब्रेकफास्ट नॉट डिनर। डिनर तो आप लास्ट में लेते हो, लाइट में लेते हो ना। Yeah, yes, ओके, sir. या ओके। Then I go to. After that, I go to school. Then after that, go to school 10 o'clock. ओके, एट 10 At o'clock। 10 o'clock. Then I go. I come into my classroom. Then I study. Continue here. Alright, that's really awesome. Pushpanjali, we don't really have a lot of time. In this way, you have to keep practicing at home, ठीक है ना? So just keep practicing all these things at home over and over and over. Tomorrow you have to recite the daily routine in past tense, and in this way we'll be keep going ahead. Jay, for you, it's your turn, and you have to recite your daily routine. I will not not the whole, but a little. Go on. I wake up early in the morning and I am go to washroom and I am go to for walking. Then I am come back to home and I am ready. Alright, Jay, for please stop for a while. Have you written your daily routine? आपने लिखा है क्या daily routine को? वो सर पहले की लिखी हुई। पहले की लिखी हुई। तो आपने प्रैक्टिस किया था घर पे? नो, यू डिड नॉट प्रैक्टिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आप आई एम हर जगह लगा रहे हो। ध्यान देना, जब डेली रूटीन बनती है तो डेली रूटीन सिंपल हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनती है। टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन, तो हमेशा आपके सिंपल डेली रूटीन, तो हद है यार, तो डेली रूटीन आपके सिंपल टेंस में बनेगी। सिंपल टेंस मतलब प्रेजेंट में बनेगी, तो पास्ट में बनेगी, तो फ्यूचर में बनेगी। तो अगर प्रेजेंट में की डेली रूटीन बता रहे हो कि आप क्या करते हो डेली, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में बना दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो वहाँ पर जो आपने आई एम बोल रहे हो, दैट्स गोना बी रॉन्ग। आप सिंपल बोलो आई वेक अप। आई एम वेक अप नहीं, आई गो, आई एम गो नहीं, आई स्टडी, आई एम स्टडी नहीं, आई रीड, आई एम रीड नहीं। इज दैट क्लियर?
या गो ऑन, स्टार्ट देयर अगेन। I wake up early in the morning, then I go to washroom. After that, I go for walk. Then I came to home come to home from work. Then I ready for आई रेडी नहीं होता, ध्यान देना। हेलो सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बताया कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऐसे यस लगता है, रेडी वर्ब नहीं है। किसी भी क्वालिटी वाले वर्ड को रेडी बनाने के लिए वहाँ पर आपको गेट लगाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मेक लगाना पड़ेगा, तो बी लगाना पड़ेगा। अब इन तीनों में क्या अंतर है आप कल बताओगे, जाकर रिवीजन करना कि इन तीनों में अंतर क्या है। प्लस कोई भी क्वालिटी वाला वर्ड, कोई भी एडजेक्टिव जिसे आप बोलते हैं, उस एडजेक्टिव को आप लगा दोगे तो वो वर्ब के फॉर्म में आ जाएगा। इसको कल आपको बताना, जय आपके लिए होमवर्क है। पुष्पांजलि तो शी हैज़ डन क्वाइट अ ग्रेट जॉब। यू हैव टू राइट द डेली रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल। वो पिछला वाला नहीं चलेगा सर जी, पिछला वाला पिछला था, अभी देखो फोकस करो, फोकस ऑन एट प्रेजेंट राइट नाउ। तो राइट योर डेली रूटीन, अगर पुष्पांजलि पॉसिबल है आप भी लिख लेना, राइट योर डेली रूटीन एंड प्रैक्टिस, चेक दैट एंड देन प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आपको आगे मूव करना। तो ये आपकी डेली रूटीन हो गई। प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में आपको बनाकर लाना है। आई विल बी आस्किंग बोथ एंड राइट नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना बी सिंपली गोइंग थ्रू द यूज ऑफ देयर। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, देयर का एग्जैक्टली यूज क्या वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर जल्दी से, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सब तो हमने पहले ही देख लिया था, सो मच इन सबको आप रिवीजन कर लेना, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस दे आर हियर। टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ देयर, एग्जैक्टली देयर का यूज क्या होता है, ठीक है ना। तो लेट मी डू वन थिंग। बाय द वे एग्जांपल्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं बस सिंपली देयर को लाऊंगा आपके पेज पे। ये भैया, तो अगर मैं देयर की बात करूँ तो देयर का यूज मेनली होता है क्वांटिटी के लिए। जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे, नंबर की बात करोगे, सिंपल सी बात है, वहां पर देयर को एज अ सब्जेक्ट बना देना। वहां पर देयर का मतलब कुछ नहीं होता है। कभी कभी समथिंग की बात भी आ जाती है। मैं बोलूँ 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हो। कभी कभी कुछ की भी बात करते हो, मैं बोला कोई है, तो वहां पर भी कुछ की बात कर रहे हो, समथिंग। तो मतलब रूम में कोई है तो वहां पर समथिंग की बात कर रहे हो। मेरे बैग में कुछ है तो वहां पर समथिंग की बात कर रहे हो। जब क्वांटिटी की बात करो या तो समथिंग की बात करो, वहां पर देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज कर दोगे एंड दैट इज द सिंपल थिंग। अच्छा, देयर इज भी हो सकता है, देयर आर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप एक की बात कर रहे हो कि एक से ज्यादा की बात कर रहे हो। देयर इज का शॉर्ट फॉर्म देयर्स हो जाएगा एंड देयर आर का शॉर्ट फॉर्म देयर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ एक लड़का है तो आप बोलोगे देयर इज अ बॉय, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। अब इसके आगे चाहो तो प्लेस भी लगा सकते हो, ना चाहो तो मत लगाओ, चाहो तो लगा लो, प्लेस को लगा दो, ऐड कर सकते हो। देयर इज अ बॉय इन माय क्लास, देयर इज अ बॉय ऑन द टेरेस, देयर इज अ बॉय आउटसाइड, देयर इज अ बॉय इन द मार्केट। इज दैट क्लियर टू यू? सो अल्टीमेटली जब भी आप क्वांटिटी या तो समथिंग की बात करोगे, वहां पर देयर एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। और वहां पर आप चाहो तो प्लेस, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, तो इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बात करते हैं एग्जांपल्स कहाँ से मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सर जी, एग्जांपल की ज़्यादा टेंशन मत लेना, वर्ड्स को याद कर लेना क्योंकि इनका यूज होने वाला है। अब मैं बात करने वाला हूँ एग्जांपल की। उसके पहले ध्यान देना कि नॉट प्लस एनी, यहाँ पर हम नॉट का भी यूज देखने वाले हैं। नॉट प्लस ए एन मिल के नो बन जाता है, या तो नॉट प्लस एनी मिल के नो बन जाता है। इज दैट क्लियर? ये बस शॉर्टकट में याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोलूँ, या तो मैं बोल सकता हूँ नॉट अ चेयर, या तो नॉट और ए को नो बना देता हूँ, नो चेयर। Not a book, no book. Not any chairs, no chairs. Not any books, no books. Are you getting the point? Not any hair, no hair. तो कहीं पर भी not plus any a या तो n मिल जाए तो वहाँ पर सिंपल no में बना दो। Not any milk, no milk. Not anyone, no one. तो not any को no बना दे तो no one बन गया। Not anything, nothing. Not anywhere, nowhere. Is that clear? Any confusion over here? अब चलो एग्जाम्पल देते हैं। मैंने बोला टेबल पर एक बुक है, तो सिंपल सी बात है कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कुछ ऐसे ही बनाओगे ना, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर को सब्जेक्ट बना दिया और टेबल पर है। यस और नो? अब यहाँ पर देखना 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, देयर वाला सबसे अच्छा है, ठीक है ना, तो देयर वाले की ही प्रैक्टिस करना। लेकिन मैं कुछ और ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बोला टेबल पर एक बुक है, तो हम तो डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ बुक इज ऑन द टेबल। क्या गलत हो जाएगा क्या? अ बुक इज ऑन द टेबल, क्या पहला वाला सेंटेंस गलत है? नहीं, हमने बुक को सब्जेक्ट मान लिया। अ बुक इज एक पुस्तक है, टेबल पर ऑन द टेबल, तो बुक इज ऑन द टेबल। तो सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि बिना देयर का यूज करके बना लो। देयर का यूज पहले सेंटेंस में हमने किया ही नहीं, तो पहला ये हो गया। दूसरा, देयर का यूज करना तो बीच में भी कर सकते हो। कब? किसके पहले? जो आपका प्रीपोजिशन है ना, ऑन, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, उसके पहले यूज होगा, ठीक है ना। तो अब बुक इज देयर ऑन द टेबल, यहाँ पर भी देयर का मतलब खास कुछ नहीं होगा, बस ये लग गया है, ठीक है ना। या तो देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इज दैट क्लियर?
Yes. चलो, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिवाइज दैट वंस मोर प्रॉपर्ली। यहाँ पर आते हैं, मैंने बोला जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस कैसे आते हैं, सबसे पहले भैया देयर का यूज करो ही मत। अगर मैं बोल दिया कि मेरे बैग में एक पेन है, तो सिंपल बोल दो अ पेन इज इन माई बैग, काम खत्म। इज दैट क्लियर? But सेकंड, आप देयर का यूज कर सकते हो बीच में, तो अ पेन इज, अब किसके पहले होगा, जो इन आया है ना, जो प्रीपोजिशन है उसके पहले यूज होगा, तो अ पेन इज देयर इन माई बैग, ये भी डन हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वहां पर देयर एज अ सब्जेक्ट यूज कर दो, तो देयर इज माई बैग, सॉरी देयर इज अ पेन इन माई बैग। तो अगर आप सब्जेक्ट को आई मीन देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। इन दिस वे यू हैव टू कीप गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर टू यू? yes. ऑलराइट, सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट गाइड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय द वे और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, ओके, टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल्स ओवर हियर। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, तो कैसे बोलोगे, या तो बिना देयर का यूज करके 10 मेंबर्स आर इन माय फैमिली, या तो 10 मेंबर्स आर देयर इन माय फैमिली, या तो देयर को एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर लो, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। अगेन सेइंग, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले गलत है, ऊपर वाले भी सही है, बट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कौन कितना यूज होता है, ठीक है ना। एक जंगल में एक राजा था, अ किंग वॉज इन अ फॉरेस्ट, अ किंग वॉज देयर इन अ फॉरेस्ट बीच में भी लगा सकते हो, ये तो देयर वॉज अ किंग इन अ फॉरेस्ट शुरू में भी लगा सकते हो, लास्ट वाला सबसे ज्यादा यूज होगा। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द रूल्स। इज दैट क्लियर? सो ऑल दिस थिंग्स आर हियर। सिंपल सी बात है भैया, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इन सब की, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे मैंने क्वेश्चन भी बना सकते हो। अभी तक तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते आ रहे थे ना, यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो देखो देखो, मैंने बोला देयर वॉज एवरीथिंग, देयर वॉज एवरीथिंग ईयर, देयर वॉज एवरीथिंग मतलब सब कुछ था, कहाँ, यहाँ था, तो देयर वॉज एवरीथिंग ईयर, यहाँ सब कुछ था, बट नाउ, लेकिन अब देयर इज नथिंग, अब कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर मैं बोलूँ काफी चेयर्स होंगी, तो आप बोलोगे देयर विल बी इनफ चेयर्स। लेकिन मैं बोलूँ क्या काफी चेयर्स होंगी, तो वहां पर विल को आप बाहर लगा दोगे, विल देयर बी इनफ चेयर्स। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल सी बात है। अब यस नो क्वेश्चंस तो बनाना आ गया है आपसे, तो जब भी यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दो, तो क्या काफी चेयर्स होंगी, विल देयर बी इनफ चेयर्स, क्या काफी चेयर्स यहाँ होंगी, विल देयर बी इनफ चेयर्स हियर, तो हियर मतलब हो गया यहाँ। ऐसे ही क्या काफी चेयर्स वहां होंगी, तो विल देयर बी इनफ चेयर्स देयर, तो यहाँ पर दो बार देयर आ रहा, पहला देयर सब्जेक्ट बन गया, दूसरा देयर लास्ट में आ गया। तो जो सब्जेक्ट देयर बन गया उसका मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट जो देयर लास्ट में है उसका मतलब वहां पर वहां होगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. पहला वाला देयर लग गया क्योंकि आप क्वांटिटी की बात करें, तो विल देयर बी इनफ चेयर्स, तो इसका मतलब होगा क्या काफी चेयर्स होंगी, और देयर वहां को बता रहा कि क्या वहां काफी चेयर्स होंगी। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। सारे एग्जांपल से ऐसे WH वर्ड क्वेश्चन बना सकते हो। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, फेमस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देयर का यूज हमने किया क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और हाउ मेनी मेंबर्स मतलब होता है कितने मेंबर्स। WH वर्ड आप सीख चुके हो, यस और नो? ऑलराइट, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स दिया। इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। देयर का यूज बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी डेली कन्वर्सेशंस में, तो अगर आप इन सारे के सारे एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मैंने सब कुछ ऐड किया, पहले देयर का पॉजिटिव हो गया, देन निगेटिव हो गया। यहाँ पर एनी का यूज देख लेते हैं थोड़ा, जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जैसे मैंने बोला कि कोई पुस्तक नहीं है, तो आप बोलोगे देयर इजंट अ बुक, यस और नो? मैंने बोला एक पुस्तक नहीं, एक पुस्तक नहीं है, देयर इजंट अ बुक। इज और नॉट को नो भी बना सकते हो, आप सिंपल बोल सकते हो देयर इज नो बुक, काम खत्म। ऐसे मैंने बोला कि टेबल पर कोई पुस्तकें नहीं थी, तो देयर नहीं है, तो देयर आंट, कोई के लिए आप एनी लगा दोगे। ध्यान देना, सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, जिनमें नॉट का यूज नहीं होता, और एनी का यूज होता है पॉजिटिव एनी का यूज होता है निगेटिव या तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। इज दैट क्लियर? ये मैंने पहले ही कवर किया था, बट इसको ध्यान रखना अच्छे से। तो ऐसे यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो देयर आंट एनी बुक्स, कोई बुक्स नहीं। अब यहाँ पर सम बुक्स नहीं बोलोगे, एनी बुक्स ही बोलोगे। सो देयर आंट आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऑन द टेबल। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते रहोगे। एंड जहां पर आर नॉट आ गया, तो नॉट प्लस एनी मिलके नो बन जाएंगे, तो देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल भी आप बोल सकते हो, यस और नो? एक और एग्जांपल ले लो, सिंपल सी बात है। देयर इजंट एनी शुगर इन द, कुछ यहाँ पर मैंने ज्यादा एग्जांपल दिए, आई गेट इट। ये मत सोचना कि सर जी इतने सारे एग्जांपल क्यों दे दिए, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो मैंने बोला देयर इजंट एनी शुगर इन द टी, चाय में कोई शक्कर नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस है, एनी आ गया क्योंकि निगेटिव है। अब नॉट प्लस एनी मिलके नो बन जाएंगे, तो आप देयर इज नो शुगर इन द टी भी बोल सकते हो। सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग अहेड टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल्स। बस इतने एग्जांपल्स हैं, और यहीं से आपके बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का दी एंड होता है। कांग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। आज के बाद आपको डेली टॉपिक्स मिलेंगे बोलने के लिए, विच मीन्स बिकॉज राइट नाउ द स्पोकन थिंग इज गोना बी स्टार्टिंग। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, दिक्कत हो तो बता देना। ऐसे नथिंग बट का यूज कर सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल ले लो। मैंने बोला देखो भैया कि कहाँ गया एग्जांपल, लेट मी गो थ्रू दैट। एक लास्ट एग्जांपल रिलेटेड टू नथिंग बट, कहाँ गए हो, इधर से।
मैंने बोला एक पुस्तक है, या तो पैसे हैं, तो आप बोलोगे देयर इज मनी, मेरे बैग में पैसे हैं, देयर इज मनी इन माय बैग। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे बैग में पैसे ही पैसे हैं, तो पैसे ही पैसे के लिए नथिंग बट का यूज करते हो, आपने पहले ही पढ़ लिया। तो देयर इज नथिंग बट मनी इन माय बैग, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे। इज दैट क्लियर? अगेन एग्जांपल्स हैव बीन गिवन बिलो, प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ। नथिंग बट का मतलब होता है वही पैसे ही पैसे, नथिंग बट मनी, लोग ही लोग, नथिंग बट पीपल, ठीक है ना। कुत्ते ही कुत्ते, नथिंग बट डॉग्स, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। एनी कंफ्यूजन? तो सर तो यहीं से मैं इस बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल को करता हूँ दी एंड। कल के बाद हम मूव करने वाले हैं आपके इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे। आप बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें मिलेंगी जहाँ पैसे वैसे सब कुछ डन होने वाला है बहुत ही जल्द। एडवांस मॉडल्स डन होने वाला है एंड ऑलमोस्ट जो भी एडवांस चीज़ें सब कुछ डन होने वाली है। कल से आपको डेली टॉपिक्स मिलेंगे, ध्यान रखना डेली टॉपिक्स टू स्पीक। तो क्लास के अंदर 5 to 10 मिनट्स आपको दिया जाएगा बोलने के लिए, सो दैट आपकी स्पोकन पे अच्छे से कमांड हो। व्हाट इज दैट? जस्ट स्टॉप डूइंग दैट, यू आर नॉट फोकसिंग। ओके, यू आर जस्ट राइटिंग थैंक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली रूटीन, डेली टॉपिक्स यू विल बी गिवन ऑन द डेली बेसिस। सेकंड, इंटरमीडिएट एडवांस्ड का जो आपका सेक्शन स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है, जिसके अंदर हम इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। कल आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी एडवांस लेवल वाली, and in this way you have to just go ahead. Is that clear to you guys? yes sir. All right, hello Zoom user, good morning to you too. How are you? I'm good. Well, And you? I'm doing great, brother. Thank you very much. So this was it in today's class. From tomorrow onwards, the advanced section of the English class is gonna be starting with daily topics together. And in this way, we are gonna be keep learning. Thank you very much for watching the video, for taking the class. I am gonna be catching up tomorrow. Until then, bye bye. Take care and have a great day ahead.